Today we will discuss nitric acid, its methods of preparation, properties and uses. This nitric acid is one of the important oxoacid of nitrogen. Oxoacid of nitrogen. The other oxoacids are H2N2O2. This is hyponitrous acid. Hyponitrous acid. HNO2 is another one. HNO2, this is nitrous acid. So the important oxoacid is nitric acid. This nitric acid is prepared in the laboratory. By heating sodium or potassium nitrate with H2SO4 in a glass retort. So we will take here, this is sodium nitrate, this is H2SO4, इसको आप हीट करते हैं in a glass retort. So one can get NaHSO4, this is sodium bisulfate or hydrogen sulfate plus HNO3. So this is nitric acid. So laboratory में करते हैं prepare nitric acid को by treating H2SO4 with sodium or potassium nitrate in a this glass retort. So on Lorentz scale, it is prepared by Ostwald's process. What is Ostwald's process? Actually, this process is based on catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. So the main steps of this process are: step 1. In this step, catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen takes place. This is catalytic oxidation. Catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. So this is NH3 plus O2 gives ये ammonia, ये gas or oxygen gas, atmosphere से oxygen. So we will get ये catalytic oxidation है. यहाँ पर हम catalyst करते हैं use palladium और rhodium. Palladium rhodium gauge catalyst. 200 Kelvin temperature, यहाँ पर 9 bar pressure. ये यहाँ पर हम देते हैं 500 Kelvin temperature, 9 bar pressure. So under these conditions, catalytic oxidation of this ammonia takes place, and we get NO. This is nitric oxide plus यहाँ पर हमें मिलता है water. So actually we get this nitric oxide in this particular step. In this step, the product is NO. This is nitric oxide. ये nitric oxide है. This in the second step, this nitric oxide formed combines with oxygen. ये NO जो है combines. in second step जो है इसका main step, इसमें NO जो है it combines with oxygen to give nitrogen dioxide. Like this, NO is a gas plus this is oxygen. इसको further oxidation होती है, you will get NO2, this nitrogen dioxide. So in step 2, the nitric oxide formed in the first step combines oxygen to give nitrogen dioxide. Now step 3. Step 3 जो है, step 3 में क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है is as formed, जो हमें यहाँ पर बन गया, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया यहाँ पर, it dissolves in water.
टू HNO3, यानी NO2 जो फॉर्म हो गया यहाँ पर डिजॉल्व्स इन वाटर to give nitric acid. Like this, NO2 plus H2O gives NHNO3. This is nitric acid. So यहाँ पर हमें मिल गया ये नाइट्रिक एसिड, प्लस यहाँ पर NO भी बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। यहाँ पर जो ये नाइट्रिक एसिड हमें बन गया, जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट था, और बन गया यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिसाइकल्ड, इसको हम रिसाइकल करते हैं, दोबारा हम यूज करते हैं इसको टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। सो इट इज रिसाइकल्ड। और यहां पर जो हमें मिल गए जो HNO3 है, दिस इज कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन। दिस HNO3 इज कंसंट्रेटेड, इसको हम करते हैं कंसंट्रेट बाय डिस्टिलेशन up to 68% by mass। अब इस HNO3 को हम करते हैं, HNO जो नाइट्रिक एसिड बन गए, इसको हम करते हैं फर्दर कंसंट्रेटेड up to 98% by उसको हम करते हैं by passing through dehydrating agent H2SO4, यानी कंसंट्रेट H2O4 में से पास करते हैं इसको, इस नाइट्रिक एसिड को, ताकि हमें 98% वो प्योर मिलेगा। सो वी पास दिस नाइट्रिक एसिड, इसको हम फर्दर कर सकते कंसंट्रेट बाय पासिंग थ्रू डिहाइड्रेटेड एजेंट H2SO4। उससे क्या होता है, उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वी गेट 98% प्योर HNO3। सो दिस HNO3 इज ए कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड है, यानी इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो HNO3 है, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज 231.4 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 355.6 केल्विन। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो लैब ग्रेड जो होता है नाइट्रिक एसिड, लैब ग्रेड नाइट्रिक एसिड में होता है, इट इज लैब ग्रेड नाइट्रिक में होता है, इट कंटेन्स, जो लैब ग्रेड नाइट्रिक एसिड है, दैट कंटेन्स ऑलमोस्ट 68% बाय मास। जो लैब ग्रेड होता है कंटेन्स HNO3 68% बाय मास एंड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज 1.504, ये उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो लैब ग्रेड HNO3 होता है। इन गैसेस स्टेट अगर हम लेंगे HNO3 इन गैसेस स्टेट, यानी गैस स्टेट में ये होता है HNO3 जो होता है गैसेस स्टेट में, दिस HNO3 exists as a planar molecule, it exists as a planar molecule like this is H, like this is H, ऐसे होता है। सो यहाँ पर ये ऐसे होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ये इन गैस स्टेट। दिस नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बॉन्ड होता है 102 डिग्री। So this is planar molecule in gas state. So in gas state we can say that nitric acid exists as a planar molecule. This nitric acid as an aqueous solution, in an aqueous solution of this nitric acid behaves as a strong acid, and give hydrogen ion and nitrogen ions। फॉर ये HNO3 है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है H2H, वाटर में अगर डालेंगे सो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा ये। सो यू विल गेट हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन।
इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वहाँ पर एक्ट करता बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सो देयरफॉर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन इन aqueous solution. दिस HNO3 जो ये HNO3 है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड अटैक्स मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ये मेटल्स को भी अटैक करता है और नॉन मेटल्स को भी अटैक करता है, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, यानी नोबल मेटल्स के बगैर, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स. लाइक हमारे पास जो नोबल मेटल्स होते हैं, मसलन हमारे पास गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, उनको अटैक नहीं करता है, बाकी दूसरे मेटल्स को अटैक करता है. अब जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन the product depends upon the concentration of the acid, temperature and nature of the material, nature of the metal, material undergoing oxidation. For example, here we'll take an example how it oxidizes. If I take copper here, this is copper, it is a metal, इसको oxidize करता है HNO3 into copper. अगर हम यहाँ पर HNO3 लिखे डाइल्यूट लिखे HNO3, so we'll get copper nitrate. ये कॉपर नाइट्रेट है, प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा NO प्लस मिलेगा यहाँ पर H2O, ये NO मिलता है यहाँ पर, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है यहाँ पर. एक और चीज अगर हम लेंगे अब कॉपर ही, अब थोड़ा बहुत हम करेंगे कंडीशन चेंज, हम लेंगे यहाँ पर HNO3 कंसंट्रेटेड. हमने भी बोला कि प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सो विल गेट CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस यहाँ पर अब इस वक्त बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अगर हम लेंगे यहाँ पर कंसंट्रेटेड, इससे पहले बना था यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O. इसी तरह अगर हम लेंगे, इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, इफ आई टेक जिंक, जिंक जो है, जिंक जो अगर हम लेंगे HNO3, सो ये हम लेंगे डाइल्यूट, सो विल गेट जिंक नाइट्रेट, ये जिंक नाइट्रेट है, प्लस यहां पर हमें मिलेगा N2O प्लस वाटर, यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें मिलेगा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, यहां पर मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड इस केस में अगर हम लेंगे डाइल्यूट. और अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे, it will treat zinc with concentrated nitric acid. ये concentrated है, so the product will be different. NO3 is zinc nitrate plus यहाँ पर बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. So इस केस में प्रोडक्ट डिफरेंट है. So ये हो गया, इसका मतलब ये है कि the product is depend upon the concentration of the acid, temperature and nature of the material used. So some metals like, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, मसलन नोबल मेटल्स के बगैर कुछ ऐसे मेटल, मसलन क्रोमियम होता है या एल्यूमिनियम, यानी वी हैव सम मेटल्स लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम, दे डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3, ये डिसॉल्व नहीं होते, डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3 बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म, पैसिव ऑक्साइड फिल्म, oxide layer, because of formation of passive oxide layer on the surface, यानी उनके सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर बनते हैं which is passive, वही इनको डिसॉल्व होने नहीं देती इन HNO3, क्योंकि यानी ये इनका जो क्रोमियम और एल्यूमिनियम इसलिए वो ये डिसॉल्व नहीं होते HNO3 में, क्योंकि उनके सरफेस पे एक पैसिव लेयर बनती है, पैसिव ऑक्साइड लेयर बनती है, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व नहीं होते. इसी तरह एक कंसंट्रेटेड HNO3 ये ऑक्सीडाइज कर सकता है नॉन मेटल्स को भी, यानी इट कैन ऑक्सीडाइज आल्सो नॉन मेटल्स, लाइक इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन, आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है इनटू आयोडिक एसिड, HiO3, आयोडिक एसिड. इसी तरह ये करता है कार्बन को, करता है ऑक्सीडाइज, ये नॉन मेटल्स है उनको ये ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO2
प्लस H2O। इसी तरह ये करता है, सल्फर को करेगा ऑक्सीडाइज इंटू H2SO4, सल्फर को करेगा ऑक्सीडाइज इंटू H2SO4 N2 और H2, बाकी प्रोडक्ट जो होंगे वो NO2 प्लस H2O। एग्जैक्टली फास्फोरस को करेगा ऑक्सीडाइज इंटू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 plus NO2 plus H2. So in short we can say that this nitric acid, it is a strong oxidizing agent. It can oxidize metals as well as non-metals with few exceptions. So it is used, यानी इसके कुछ अहम यूजेस है। इसको हम यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर अमोनियम नाइट्रेट, यानी हम अमोनियम नाइट्रेट करते हैं मैन्युफैक्चर इससे। Ammonium nitrate is manufactured by using this nitric acid. This ammonium nitrate is used for fertilizers. इसको हम फिर करते हैं use for fertilizers. Fertilizers. Other nitrates are also formed. Yeah, other nitrates are also formed by using this nitric acid. Those nitrates are used for explosives. Explosives and pyrotechnics. So this nitric acid is also used for the preparation of, और भी कुछ कंपाउंड्स बना सकते हैं by using this nitric acid, such as nitroglycerin, trinitrotoluene, trinitrotoluene, and other nitro compounds. It is also used for, इसको हम और भी यूज कर सकते हैं for pickling कर सकते हैं इससे, pickling of stainless steel, itching of metals कर सकते हैं इससे, and इसको हम यूज कर सकते हैं also as an oxidizer for rocket fuels. In the rocket fuels में हम उसको यूज कर सकते हैं as oxidizer. So this was about an important oxoacid of nitrogen, that is nitric acid. Okay.